Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune presents a webinar on Create Confident Child. Be the best version of you. To build your esteem and discover how to improve your confidence, to be yourself in a world that is constantly trying to make the greatest accomplishment. By our expert Vasudha Deshpande to promote good well-being, to go confidently in the direction of your dreams and live the life you have imagined. Our chairman, Shri Subhashji Parmar, has encouraged and led the way to us to get the key for your success. Let's begin with our today's interesting webinar. Good morning and a warm welcome to everyone present with us live on this Sunday morning. I, Urvisha Rathod, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, welcomes you all for our today's webinar on the topic Create Confident Child. Be the best version of you, with our eminent speaker, Mrs. Vasudha Deshpande. We learned something interesting and informative through this series of Sunday webinar with the inspiration and guidance of our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, and all the members of Education Committee. It is not always easy being a kid. There are a lot of new challenges that a student faces every day, like raising your hand in class or making new friends. No matter how old you are, one thing that will always help you is confidence. Confidence is believing in yourself and having faith in your abilities. So, at today's webinar, Create Confident Child will help you in uplifting your confidence and boost your self-esteem. Now, I request our principal, Mrs. Jacinta Manuel ma'am, to brief us about our school activities. Over to you, ma'am. Thank you, Urvisha. Good morning, all. I heartily welcome our today's honorable speaker, Mrs. Vasudha Deshpande ma'am, and also extend my heartfelt gratitude for accepting our invitation and joining us for this webinar, Create Confident Child. Be the best version of you. Confidence is the key to success. Achieving success without confidence is almost an impossibility. Confidence is all. We all know nothing but a conviction and a self-belief in one's ability. Thus, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School help to develop students' communication skills more effectively by conducting various competitions such as Inter-School CompuSkill Championship, drawing, recitation, storytelling, toy talk, debates, etc. It is our endeavor to guide our students in annual social gathering to encourage them and show their talents and build up their confidence in them, which will allow them to speak concisely and with clarity. Thus, one of the greatest gifts we can give our students is to instill unto them a strong sense of confidence, because confidence brings success. I thank our chairman, Sri Subhashji Parmar sir, for motivating us and guiding us in all what we do. So, here we are today with yet another interesting topic, Create Confident Child. Thus, self-confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening. Thank you. Thank you, Jacinta ma'am. It is honor and privilege for me to introduce you to our today's guest for this webinar. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, I am extremely glad to welcome our guest, Mrs. Vasudha Deshpande, for today's webinar. Ma'am is a psychologist and remedial educator. Ma'am has done MA in clinical psychology from SNTT University, Pune, 2005. She has done her post-graduation in criminology with forensic psychology at Middlesex University, London, 2007. Ma'am has also completed her post-graduation in human resource management at TAC MSc, University of Wales, UK. She has done various certificate courses like remedial education, personal counseling, and diploma in journalism
Communication and Public Relations. Ma'am is founder and counselor at Mind Master Counselor, Pune since 2014. Ma'am is also currently working for Samvad Helpline for counseling people suffering from mental health problems during COVID-19 pandemic. She has conducted various workshops and lectures at different colleges all over Maharashtra. A book, Mulanbarobar Vartanna, has been published in the year 2018. Various articles written by ma'am have been published in various newspapers. Ma'am has also done research projects on different topics. Ma'am, we are indeed fortunate to have you here this morning. Now, I request Mrs. Vasudha Deshpande ma'am to share your thoughts and views on our today's topic, Create Confident Child. Be the best version of you. Over to you, ma'am. Good morning, all. I'm just starting to share the screen. Good morning, everyone. I'm very happy to be a part of this webinar where all the teachers, especially chairman of the school, Parmar sir, Jacinta ma'am, and all of the teachers and parents are helping students to boost their confidence. And I'm very glad to guide you all here today. Let's start our webinar. We won't waste much of time on talking and delivering so that you also have to have so much questions and queries in your mind. We can also interact later on, right? So today's webinar is on boosting confidence. Children, I would like to ask teachers to share the video first. Let's watch a video and then start our talk on boosting confidence. Ma'am, please play the video. Yes, ma'am. We have seen two seeds were lying side by side. दो सीड्स थे जो एक दूसरे के बाजू बाजू में पड़े हुए थे. दोनों में सेम कैपेबिलिटीज थी, राइट? लेकिन एक सीड थी जो सोचती थी कि मुझे ग्रो होना है, मुझे आगे बढ़ना है. आई वॉन्ट टू stretch my hands. I want to grow up. And then she grew up. अदर सीड जो थी, दूसरी वाली, ये वाली सीड, ये वाली डरी हुई थी. आगे जाके जमीन में अंधेरा होगा, मैं अगर अंदर गई, मेरे रूट्स अगर अंदर गए तो पता नहीं क्या होगा. मैं अगर बढ़ गई, मेरे स्प्राउट्स अगर ऊपर आ गए
और किसी बच्चे ने मुझे प्लग कर लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो उसने डर के मारे खुद को ग्रो ही नहीं होने दिया। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, आपण असं करतो खूप वेळेस, की आपण घाबरून हातपाय पसरतच नाही. वी डोंट ग्रो अप, वी डोंट लेट आवर सेल्फ ग्रो. क्यों होता है ये सब? क्यों आती है ये निगेटिव थिंकिंग? क्यों आता है ये डर? ये आता है कॉन्फिडेंस की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से. जब हम कॉन्फिडेंस होते हैं, होता क्या है, आप अभी एक सर्कल देख रहे हो यहाँ पे, राइट? ये है कॉन्फिडेंस का साइकिल. जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, हमें एम्बिशन होता है, हमारे गोल्स हम लोग बना लेते हैं, हायर गोल्स होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं वो गोल आगे लेके जाने के लिए, वो गोल फुलफिल करने के लिए. जब हम मोटिवेटेड होते हैं, हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट and then we succeed and that success boost our confidence again. तो ये साइकिल होता है जो चलता रहता है. आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, राइट? मैं अभी ऑडियंस में से पूछना चाहती हूँ कि क्या होता है कॉन्फिडेंस. ये वेबिनार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं. व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, why people lack self confidence and boosting confidence. क्या होता है ये कॉन्फिडेंस? कितनी देर से चल रहा है, एक सीड को था, एक सीड को नहीं था, हम में होता है, कई बार नहीं होता है. What is this confidence? Can someone answer me from the audience? खुद पे विश्वास रखना कॉन्फिडेंस है. राइट मैम, उर्विशा मैम ने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड कर दिया है कि खुद पर विश्वास रखना कॉन्फिडेंस है. द एबिलिटी और द बिलीफ टू बिलीव इन योर सेल्फ. खुद पर भरोसा रखने का भरोसा, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये भरोसा यानी कॉन्फिडेंस. कोई भी टास्क कितना भी ऑड हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितने भी एडवर्स सिचुएशन आए मेरे पास, मैं कंप्लीट करूँगी ही करूँगी, मैं कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, ये विश्वास यानी कॉन्फिडेंस. कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस यानी 4 लोगों के सामने मुझे आंसर देना है. कॉन्फिडेंस यानी मैं अपनी बात पूछ सकूं किसी से, मैं हैंड रेस करूं ऊपर और टीचर से मेरी बात बोलूं, तो ही मुझ में कॉन्फिडेंस है. तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है. कॉन्फिडेंस आपको हर जगह पे ज़रूरी होता है, हर चीज़ में ज़रूरी होता है. आप एग्जाम देने जाओ, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होगा. आप कुकिंग करने जाओ, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होगा. आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने जाओ तो भी आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. जब आप बच्चे आगे बढ़ोगे, आप सब लोग, आई थिंक 5 से 15 साल के बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ है जो पास आउट भी हुए हैं, राइट? तो कहीं पे आप अभी आगे जाओगे, कॉलेज में जाओगे और आगे का पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए, अभी आप एक बिल्ली देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सारे और कुत्ते बैठे हैं. देयर आर डॉग्स एवरीवेयर, पता नहीं कितने हैं, 15 to 20 डॉग्स आर देयर, एंड वो बिल्ली आराम से जा रही है. द कैट इज गोइंग ऑन. उसको डर ही नहीं है किसी का. क्यों नहीं है? वो तो उनमें से कितनी छोटी है, पता नहीं कोई भी आकर उस पर जाएगा एंड दे विल किल हर. इट इज पॉसिबल, बट शी हैज दैट कॉन्फिडेंस. दैट इज व्हाट आई विल कॉल कॉन्फिडेंस. एडवर्स सिचुएशन है बट स्टिल आई बिलीव इन माई सेल्फ. डर है बट स्टिल आई एम एबल टू कंट्रोल माई फियर. मैं अपनी डर को काबू में रख सकती हूँ, तो मुझ में कॉन्फिडेंस है. ये नहीं है कि मुझे डर ही नहीं लगेगा, ये नहीं है कि वो बिल्ली को डर नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है, बट शी नोज, शी हैज बिलीव इन हर कैपेसिटीज कि वो आगे जाएगी. तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये तो हम जानते हैं इनको. सचिन जी, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट खेलने गए थे. किस चीज के आधार पर? कॉन्फिडेंस के आधार पर, खुद की कैपेबिलिटीज पे भरोसा था. इसलिए इन्हें भी जानते हैं हम लोग. बाबा साहेब अम्बेडकर जब ये सीख रहे थे, तब
कास्टिज्म का कितना सारा ये इंडिया में था, डर इंडिया में था। इनके कास्ट के लोगों को मंदिर में तक नहीं जाने दिया जाता था, पानी तक नहीं मिलता था। एडवर्स सिचुएशन से आगे बढ़े, पढ़े, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, कितने आगे गए। स्टीफन हॉकिंस, हम लोग जानते हैं, व्हील चेयर पर थे, बात तक नहीं कर सकते थे, लेकिन एक वेल नोन फिजिसिस्ट बनकर रह गए। इन्हें पता नहीं, बच्चे शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं, यह है सुधा चंद्रन जी। एक एक्सीडेंट हुआ था जिनमें इनकी टांग कट गई, बट फिर भी एक टांग होते हुए मन में ठान लिया था मैं डांसर बनूंगी, डांसर बन गई। एक वेल नोन भरतनाट्यम डांसर है, एक्ट्रेस भी है, दीपा मलिक जी। जानते हैं, बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये है फर्स्ट लेडी जिन्होंने पैरालंपिक में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया था। व्हील चेयर पर बैठी हुई आपको भी दिखाई दे रही होगी। कितनी सारी कमियां थी इन लोगों में, कितनी सारी एडवर्स सिचुएशंस थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े? क्योंकि वो खुद पर भरोसा करते थे। बिलीव योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे डन। ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस हो तो एक नन्ही सी चींटी बड़ा सा वुड भी उठा कर लेके जा सकती है। हम जानते हैं, हमने देखा है, हमने पढ़ा है। ये कॉन्फिडेंस है जो हमें मेहनत करने के लिए तैयार करता है। अच्छी बात यह है बच्चों कि सब में कॉन्फिडेंस ना भी हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न्ड एंड बिल्ट ऑन। हम लोग बढ़ा सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस। अभी भले ही नहीं होगा, कौन सी भी उम्र में, कितनी भी साल की उम्र में हम लोग ये कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहिए। ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट होता है जो सक्सेसफुल लोगों के लिए और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफर करता है। दोनों में सेम कैपेबिलिटीज होती है। अभी आप ये लड़की और लड़के के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप वो उनके अंदर का जो स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी ये पिक्चर्स चेंज भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लड़की में कॉन्फिडेंस है, लड़के में नहीं है, और ये भी हो सकता है कि लड़के में है, लड़की में नहीं है। ये स्ट्रिंग्स जो हमें बता रही है ना, आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है, एक स्ट्रिंग को लटका हुआ है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें स्ट्रिंग को लटकना है या हमें कॉन्फिडेंटली स्ट्रिंग के ऊपर से चलना है। ये हमारे मन में है। जीत हमारे मन में है, हार भी हमारे मन में ही है। हम अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं हारा हुआ हूं, तो आप खेलने से पहले ही हारे हुए हैं। ये कहेंगे कि मैं जीतूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो जीत तो आपके हाथ में है। आधे से ज्यादा रास्ता आपने पार कर लिया है। सो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी कुछ चीजें हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें एक चीज पे कॉन्फिडेंस है, दूसरी चीज में नहीं है। ऐसा होगा कई बार कि मैं शायद 4 लोगों के सामने स्पीच देते वक्त कॉन्फिडेंट हूं, बट when it comes to kitchen I'm less confident, I'm not much confident। उल्टा भी हो सकता है। बच्चों के बारे में ये हो सकता है कई बार, हाँ मैथ का पेपर है तो आई एम कॉन्फिडेंट, बट लैंग्वेजेस है तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। क्यों होता है ये? इट डिपेंड्स ऑन आवर कैपेबिलिटीज, इट डिपेंड्स ऑन the values we have, it depends on my skills। मेरे स्किल के ऊपर ये मेरा कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है। तो अगर आप में किसी चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्किल हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। राइट, सो इट इज अ रिलेटिव टर्म। सेकेंडली, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मन की एक अवस्था है। कई बार ऐसा होगा कि वी फील कॉन्फिडेंट इन पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन किसी और सिचुएशन में शायद हमें कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हम लोग के मन की ये अवस्था है, इसीलिए हम ही लोग इस पर काबू कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड विथ एफर्ट्स। कोशिश करो तो हम लोग बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं
और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑप्टिमिज्म पैदा करती है. इट मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी बना देती है. हम ये सोचते, हम लोग फेल्यूर के बारे में नहीं सोचते, हम लोग अपने सक्सेस के बारे में सोचने लगते हैं. हम लोग ये सोचते मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये नहीं सोचते कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी हारा हुआ हूँ, आई कैन नॉट डू दिस. हम ये सोचते हैं कि यस आई कैन, आई विल, मैं करूँगा, मैं करूँगी, कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं अपना गोल पा कर रखूँगी. तो ये ऑप्टिमिज्म पैदा कर सकता है. ये क्या है, इतनी देर से चल रहा है, कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है. मैम ने ठीक से बता दिया, उर्विशा मैम ने, कि ये बिलीफ है, हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस होता है. लेकिन ये कॉन्फिडेंस के अंदर कई सारी चीज़ें होती है. अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ एफिकेसी होती है. सेल्फ एफिकेसी यानी मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास. सेल्फ अवेयरनेस यानी नोइंग अबाउट योर सेल्फ, मैं क्या हूँ, एग्जैक्टली मैं क्या हूँ, कौन से मेरे स्ट्रेंथ्स है, कौन से मेरे वीकनेसेस है. जब मुझे वीकनेसेस पता चलेंगे तभी मैं उनके ऊपर काम कर पाऊंगी, राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? खुद के बारे में जानना, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना अपने आप को, उस तरह से. सेल्फ एफिकेसी है कि मैं कर सकती हूँ, ये विश्वास. अभी ये दोनों चीजें होने के बाद एक चीज जरूरी होती है, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम यानी खुद ही खुद का रिस्पेक्ट करना. कई बार ये दोनों चीजें होती है, मुझे पता होता है मैं क्या करने वाली हूँ, मुझ में क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ. अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ खुद को, तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप से कम हो जाता है, क्योंकि कोई और आके कुछ बोल देता है मुझे, एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग. मैं खुद को लो फील करने लगती हूँ क्योंकि उसने मुझे ये कहा. इसका रीजन ये होता है, सेल्फ एस्टीम नहीं होता है. सेल्फ एस्टीम यानी खुद के ऊपर खुद का रिस्पेक्ट करना. मैं जब अपना खुद का रिस्पेक्ट करूंगी, मैं जब अपने खुद से प्यार करूंगी, देन आई विल बिल्ड अप माई सेल्फ एस्टीम. कई बार उल्टा भी होता है कि सेल्फ एस्टीम होता है बट सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता. तो इन दैट केस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन रिस्पेक्ट करने लायक कुछ है ही नहीं मुझ में, राइट? देन एक चीज़ और ज़रूरी है, असर्टिवनेस. कई बार ऐसा होता है कि असर्टिवनेस को एरोगेंस समझ लेते हैं हम लोग. असर्टिवनेस इज नॉट एरोगेंस. असर्टिवनेस यानी जितना हम लोग खुद का रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही हमें दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, अगर कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ अगर और मैं असर्टिव हूँ, तो आई से डायरेक्टली कि आई कैन नॉट, आई विल नॉट डू दिस. अगर कोई आके मुझे बोलता है कि आप ये कर लो और आपको ये मिलेगा, और वो मेरे वैल्यूज से मैच नहीं कर रहा है, तो आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज. आई से कि नहीं मैं नहीं करूँगी. तो वो होता है असर्टिवनेस. कोई बच्चा अगर बोलता है आपको, कोई बुली अगर करता है आपको और बोलता है कि मुझे कॉपी दे दो, किसी इंटेलिजेंट बच्चे को, और तो अगर कॉपी नहीं देगा, मुझे कॉपी करने नहीं देगा, मुझे चीटिंग करने नहीं देगा एग्जाम में, तो बाहर आ, मैं तुझे देख लेता हूँ. तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, कई बार असर्टिवनेस कम अगर होता है उसमें, तो वो चुपचाप से दे देता है, एंड देन ही स्टार्ट फीलिंग लो कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया. तो इसीलिए असर्टिवनेस होना जरूरी है. आपको बताना भी आना चाहिए. कोई बुली कर रहा है तो आपको खुद के लिए स्टैंड करना चाहिए. अगर पेरेंट्स हैं, यहाँ हैं पेरेंट्स कई सारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो पेरेंट्स को भी बच्चे को असर्टिवनेस बढ़ाना चाहिए. अगर कोई आपके बच्चे से आकर झगड़ा कर रहा है, तो आपके बच्चे को इतना कैपेबल बनाओ कि वो असर्टिवली खुद के लिए स्टैंड कर सके, खड़ा रह सके, राइट? सो ये सब करने के लिए एक चीज हमें याद रखना जरूरी है हम सभी को, कि कुछ खास है हम सभी में. जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने ये ऐड शायद देखी होगी कैडबरी की, डेयरी मिल्क की. वो लड़की आती है, नाचती है ऐसे गोल गोल घूम कर, कहती है कुछ खास है हम सभी में, बात है क्या बात है जिंदगी में. जब हम ये बिलीव करना स्टार्ट करेंगे ना कि मुझ में कुछ खास है,
और ख़ास बात हर किसी में होती है, भले ही बच्चा पढ़ाई में कम हो, उसमें कोई और बात खास होगी। भले ही बच्चा अपाहिज हो, डिसेबल्ड हो, उसमें कुछ बात होगी जो उसमें होगी, वो खास बात होगी। और जब ये खास बात हमें पता चल जाती है, अपने आप से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। इट हेल्प्स इन बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। तो ये बिलीव दिस थिंग कि कुछ खास है हम सभी में, तभी जिंदगी में कुछ बात आना स्टार्ट हुई। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें अपने आप में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। थिंक अबाउट योर गोल। आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में। तो वो आपको मोटिवेट करना स्टार्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाना स्टार्ट करेगा। इट इज सिंपली नोइंग योर सेल्फ। जैसे मैं हूँ वैसे ही खुद को देखूंगी, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पहले भी कहा था, वैसे हम मिरर में देखेंगे और बोलेंगे हाँ मैं हूँ, वो हूँ। अभी यहाँ पे ना हम लोग एक काम कर सकते हैं। जब कभी भी हम मिरर में देखेंगे, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। मिरर में देखिए, खुद की आंखों में आंखें डाल के देखिए जब मिरर में देखोगे तब। और जब ये मिरर में खुद की आंखों में आंखें डालकर देखोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आप में कितने सारे कैपेबिलिटीज हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कितनी सारी स्ट्रेंथ्स है आप में, कितना सारा विश्वास है आप में, कितनी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आपकी है। इट मेक्स यू यूनिक। सिर्फ आपको वो चीजें बना देती है। ये मैं हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरे वीकनेसेस है, ये मेरे लाइकिंग्स है, ये मेरे डिसलाइक्स है, ये मेरे इंटरेस्ट्स हैं। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे 10th भी पास कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा लाइकिंग क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। और जब ये नहीं पता होता तब हमारे गोल्स पर उसका इफेक्ट होने लगता है। हमें यही नहीं पता होता कि मेरा गोल क्या है। और जब ये कुछ पता नहीं होता तो हम लोग अंधेरे में जैसे भटकते हैं ना, उस तरह से भटकते रहते हैं। वी फील लेस कॉन्फिडेंट। ये जब होता है तब ये क्या कर सकते हैं हम लोग सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? वी कैन आइडेंटिफाई आवर टैलेंट्स। हम खुद को विक्टिमाइज्ड बनाने से रोक सकते हैं। विक्टिमाइजेशन क्या होता है कि कंटिन्यूसली हम लोग क्राइंग करते हैं, वाइनिंग। पीपल यूज टू वाइन कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास क्लासेस नहीं है, मेरी मम्मी मुझे टाइम नहीं देती है, मेरे पापा कहीं और होते हैं। सो वी कीप ऑन सेइंग दिस। और हम बोलते हैं कि ये सिचुएशन जो है ना, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो टीचर है ना, उन्होंने पार्शियलिटी की तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग सिचुएशन पे डाल रहे हैं कि हमारे फेलियर का रीज़न हम लोग सिचुएशन में ढूंढ रहे हैं। हम लोग विक्टिमाइज कर रहे हैं अपने आप को कि चीज़ ऐसे, सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कितने सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े हुए हैं, मैरिड हैं, जो उसके बाद में कहते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है। हम लोग बोल देते हैं मेरा नसीब ही खराब है। और ये जो नसीब खराब होना, ये जो बात है, दैट इज विक्टिमाइजेशन। हम लोग विक्टिमाइज बना रहे हैं, अपने आप को विक्टिमाइज बना रहे हो। मुझे कोई अच्छे फ्रेंड ही नहीं मिली, मेरा नसीब ही खराब है। मुझे अच्छा माहौल ही नहीं मिला, मेरा नसीब ही खराब है। हमने शुरू में देख लिया, कितने भी एडवर्स सिचुएशन हो, लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने वो विक्टिमाइज होने से मना कर दिया है। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी विक्टिमाइज। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं विक्टिमाइज होंगी, मैं नई सिचुएशन के ऊपर मेरे डालूंगी। क्या कर लेगी सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा? मैं अपने कैपेबिलिटीज़ पर आगे बढ़ूंगी। टेक प्राइड ऑन योर गुड क्वालिटीज। येस, यू शुड फील प्राइड। अभी प्राइड बोलो तो लोगों को लगता है कि गर्व है, और गर्व का घर हमेशा खाली होता है। खाली इन द सेन्स नीचे होता है। खाली इज इन मराठी, की गर्वाचं घर खाली, असं पण म्हणतो कि अगर मुझ में प्राइड है तो शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं, प्राइड अगर आपको जो चीज़ नहीं है उस पर है,
तो ज़रूर आप नीचे गिर जाओगे। लेकिन जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर प्राइड करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दैट कि हाँ, मुझ में ये है, मुझ में ये चीज़ है, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, राइट। मैं आई हैव फ्यू क्वालिटीज़ इन माई सेल्फ, मुझ में है, तो मैं क्यों उस पर प्राइड ना करूँ। मैं अच्छा लिख सकती हूँ। कई चिल्ड्रन ऐसे होंगे, जो कई बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे से लिख पाते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ अच्छा है। तो टेक प्राइड ऑन योर गुड क्वालिटीज, से कि मुझ में कुछ गुड क्वालिटीज है। रिकॉग्नाइज योर इनसिक्योरिटीज। अभी ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करती है हमेशा। क्यों इनसिक्योर होते हैं हम लोग? जब हम लोग किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, हम लोग इनसिक्योर फील कर लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है मुझ में, उसमें उसको मिला है, मुझे नहीं मिला, उसे मोबाइल मिला है, मुझे नहीं मिला है। सो वी फील इनसिक्योर। और वो इनसिक्योरिटीज़ जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस कम करती है, लोअर डाउन करती है। तो क्या करना ज़रूरी है इस टाइम पे कि मुझे एग्जैक्टली इनसिक्योर क्यों लग रहा है, राइट। मुझे ये लग रहा है कि मैं उससे कम हूँ, मुझे ये लग रहा है कि उसके पास कई सारी चीज़ें हैं और मैं उसके जैसे नहीं बन सकती, मैं किसी और के जैसे नहीं बन सकती। मुझे ये लग रहा है कि कई बार ऐसे होता है ना कि एक 13-14 ईयर्स की एज में पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। देन ऑल्सो चिल्ड्रन फील इनसिक्योर। क्यों इनसिक्योर? भाई मेरी स्किन अच्छी नहीं है तो मेरा ये नहीं हो रहा है। सो वो इनसिक्योरिटीज़ जो है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। इनसिक्योरिटीज क्या है वो रिकॉग्नाइज करो एंड बाउंस बैक फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं फेल हुई हूँ? ये मिस्टेक्स जो है ये भी हमारा कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करती है। कुछ बोलते बोलते गलत हो गया तो शायद, अरे एक बार गलत हो गया, अभी शायद से आगे का पूरा का पूरा गलत ही हो जाएगा। ये सोच करके हम लोग आगे कोशिश ही नहीं करते। कई बार ये होता है कि एक बार बोल दिया, बोलना नहीं आया, बाद में हम लोग चुप हो जाते हैं, कोशिश ही नहीं करते। सो बाउंस बैक फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने गलत की है लास्ट टाइम, जो चीज़ें मैं अभी आगे जाकर गलत नहीं करने वाली हूँ। सो वी शुड नो दैट, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग हमारी जो मिस्टेक्स है वो पैर के नीचे रख पाएंगे। कीप योर मिस्टेक्स एट द बॉटम। सर पर उठाकर मत लो वो मिस्टेक्स, पैर के नीचे रखो, तो हम लोग उस पर खड़े होकर खुद की हाइट बढ़ा पाएंगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ये मैंने पहले ही बोला, जब हम लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं ना, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम लोग अवेयर तो होते हैं अपने बारे में, लेकिन हम लोग अलग तरह से अवेयर होते हैं। अरे उसे है, मुझ में नहीं है, तो देन किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? क्योंकि कंपेयर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो खुद को खुद से कंपेयर करो। ये सोचो कि मैंने लास्ट टाइम कैसे किया था और मैं अभी कैसे कर रही हूँ, मैं अभी कैसे कर रही हूँ और इसके बाद में मैं कैसे करूँगी। सो कंपेयर विथ योर सेल्फ। खुद को खुद के साथ कंपेयर करो, खुद का परफॉर्मेंस कंपेयर करो। किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो। इसे एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। क्या होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है अब हमारा कि मुझ में ये चीज़ें हैं तो मैं कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। पेरेंट्स में भी कई बार ये चीज़ें होती है कि उसका मैथ अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है, उसका मैथ अच्छा नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इससे अच्छा कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट पर कॉन्सेंट्रेट करें। ग्रोथ माइंडसेट यानी एफर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। हम ये कह सकते हैं कि वी कैन टेक एफर्ट्स, आई कैन ट्राई मोर, आई विल बी सक्सेसफुल इफ आई ट्राई मोर। हाँ, मुझे अभी नहीं आता है बट आई कैन लर्न। तो हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा। इसके बाद है सेल्फ एफिकेसी, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। सेल्फ एफिकेसी इज योर बिलीफ ऑन योर ओन एबिलिटी एंड एबिलिटी टू परसिस्ट एंड टू सक्सीड। ये जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे अपना, और हम लोग ये सोचेंगे कि मैं अपना कोशिश करूँगी
और कोशिश करने के बाद मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो पाऊंगी। ये जब रहेगा तब हम लोग सेल्फ एफिकेसी खुद का इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी जो है वो हर सिचुएशन में हमारे लाइफ के अफेक्ट कर सकती है। एग्ज़ाम है, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, हम लोग अगर सेल्फ एफिकेसी है और हम लोग बोलेंगे हाँ चलो आधा घंटा है, मैंने क्लास में ध्यान दिया था, मैं एग्ज़ाम दे दूंगी, तो सेल्फ एफिकेसी से हम लोग ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन बच्चों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है दे रिफ्यूज़ टू ट्राई। अगर आपका बच्चा ट्राई करने से ही मना कर रहा है तो सोचो उसमें शायद से सेल्फ एफिकेसी नहीं है, तो हमें वो बढ़ानी होगी, हमें उस तरह से कोशिश करनी होगी कि वो क्यों कोशिश नहीं कर रहा है, उसे कोशिश करने के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ एफिकेसी ईच एंड एवरी सिचुएशन पे हमें ये कर सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं? परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट्स, एक्सपीरियंसेस दे दो बच्चों को अलग अलग तरह के, खुद भी एक्सपीरियंसेस ले लो, वर्बल पर्सुएशन करो। वो वन पोएम इज देयर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। सो इस टाइप्स के जो एफर्मेशंस हैं आप खुद को दे सकते हो। अपना फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लो सेल्फ एफिकेसी हो तो धड़कन बढ़ती रहती है, सो वी कैन maintain that physiological state, we can keep ourselves healthy रखो खुद को, तो अपने आप ये होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर पाऊंगा। I can sit for longer hours, I can study well। इस तरह से we can develop our self efficacy। अभी सेल्फ एस्टीम, अभी हमने देखा सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो आप 3 पॉइंट्स देख रहे हो यहाँ पे। चेस के जो चेस प्लेइंग के लिए जो ये होते हैं कैरेक्टर्स, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है बिशप ही है ना, ये अपने आप को यहाँ पे देख रहा है आईने में। सेम है, जो कॉन्फिडेंस है उसमें, सेल्फ एक्सेप्टेंस है उसमें। ये जो है वो अपने आप को पॉन की तरह देख रहा है कुछ बहुत बड़ा लेकिन देख रहा है बहुत छोटा सा खुद को। तो ये होता है लो सेल्फ एस्टीम। और ये जो है वो अपने आप को किंग की तरफ तरह देख रहा है तो कुछ नहीं लेकिन समझ रहा है किंग अपने आप को। ये होता है हाई सेल्फ एस्टीम। यू ओवर एस्टिमेट, यू फील सुपीरियर, यू हैव सम एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ। कुछ सुपीरियर पावर है मुझ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, याऊँ याऊँ याऊँ, मैं तो राजा हूँ किसी कहीं का। इस तरह की जो बिलीफ है दैट इज़ हाई सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम कितना होना ज़रूरी है, जितना हम लोग हैं उतना ही सेल्फ एस्टीम रखो, राइट। कम मत समझो अपने आप को और बहुत ज़्यादा भी मत समझो अपने आप को। तो क्या होता है जब हाई हेल्दी सेल्फ एस्टीम रखना, जिसे हम लोग ना हाई ना लो हम लोग कहेंगे वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम है। जब हेल्दी सेल्फ एस्टीम होता है तो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ एज डिजर्विंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। और जब लो सेल्फ एस्टीम होता है तो अपने आप के बारे में हमारी पुअर ओपिनियन होती है, पुअर आइडियाज होती है। आप कॉन्स्टेंटली आप लोग वरी करते रहते हो, आप ये सोचते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो जैसे ही ये थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी कि आई एम नॉट गुड इनफ, आपका मूड लो होने लगेगा, आप परेशान रहने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि यस नो आई एम गुड इनफ, आई कैन डू समथिंग, आई विल डू समथिंग, तो अपने आप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी असर्टिवनेस यानी सेल्फ एश्योर्ड रहना, कॉन्फिडेंट विदाउट बीइंग एग्रेसिव। असर्टिव होना यानी गुस्सा करना नहीं, असर्टिव होना यानी खुद का दिमाग शांत रख के आपका जो पॉइंट है वो दूसरों के सामने रख पाना। जब आप आर्ग्यू करते हो, अगर आप में लो कॉन्फिडेंस होता है तब आप गुस्सा हो जाते हो जल्दी से, आप एकदम से डांटने लगते हो। उसकी बजाय अगर आप में असर्टिवनेस है तो आप फर्म रहते हो,
आप फर्मली बोल पाते हो। कई बार पेरेंट्स में भी असर्टिवनेस होना ज़रूरी होता है ताकि यू कैन बी फर्म अबाउट द रूल्स के लिए फर्म होना। अगर आप होते हो रूल्स के लिए फर्म, तभी आप बच्चों में वो रूल इनकलकेट कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों में वो रूल्स आएंगे ही नहीं। बच्चों को समझ में आ जाता है कि मम्मी का खुद का ये नहीं है, मम्मी खुद ही बैलेंस्ड नहीं है, मम्मी का खुद का ही अभी हाँ बोल रही है, कल शायद ना बोलेगी। वो सिर्फ गुस्सा हो रही है, किसी और चीज का गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। सो इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू बी असर्टिव। जब असर्टिव होते हैं हम लोग, तो हम हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और डिजायर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं। हमें पता होता है हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, और कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे, और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे बोल सकते हैं असर्टिवली कि मैं ये नहीं करूँगी। Assertive people enter friendships from an I count my needs, I count your needs position। मतलब वो दोनों का ख्याल रखते हैं, वो खुद का भी ख्याल रखेंगे और दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है ना, तब कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। मैं सिर्फ दूसरों का ख्याल करूंगी, अपने आप को मैं मेरा ख्याल ही नहीं करूंगी, तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू प्लीज अदर्स। मैं जब खुद औरों को खुश करने की कोशिश करूंगी, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी। दूसरों को खुश करना ये मेरे हाथ में नहीं है, बट आई ट्राई टू काउंट देयर नीड्स। मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, हाँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं खुद के भी नीड्स डाउन नहीं करूंगी, मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी। सो दैट इज व्हाट असर्टिवनेस इज। ये है पूरा कॉन्फिडेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, रेसिपी बोल सकते हैं आप लोग। ये चीज़ें होना ज़रूरी है रेसिपी में। तो अभी हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस के लिए। कैसे कर सकते हैं? खुद के अचीवमेंट्स देखो, खुद के वीकनेसेस देखो, अपॉर्चुनिटीज देखो, मेरे सामने कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं और मैं वो क्यों कर पाऊंगी या क्यों नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बच्चे ने 10th कर लिया है, उनको ये करना बहुत ज़रूरी होगा कि स्वॉट एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ एज अ प्रोफेशन, मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, और अगर वो प्रोफेशन में चूज़ करता हूँ तो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जो मुझे आ सकती है, तो वो डिफ़िकल्टीज़ को मैं कैसे टैकल करूँगी, ये सोचो। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं। कई बार ऐसे होता है कि मेरे पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट, फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं घर नहीं छोड़ सकती। वेयर डू यू वांट टू गो, लेकिन मैं चूज़ ऐसे करूँगी कि मुझे कहीं और जाके पढ़ना है, तो पहले तो मैं वहीं पे ये हो जाऊँगी कि मुझे घर छोड़कर जाना है, तो मैं वहीं पे नर्वस हो जाऊँगी। तो यहाँ पे हमें अगेन घर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टडी के लिए जाके आई कैन कम बैक। सो वेयर डू आई वांट टू गो, मैं क्या करना चाहती हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा 2 सीड्स का स्टोरी, वो एक सीड जो थी, शी वांटेड टू ग्रो, उसके लिए ग्रो होना इम्पोर्टेंट था और उसके लिए आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट था। शी न्यू कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू ग्रो अप। राइट, मैनेज योर माइंड, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी जो थी हमारे दूसरे सीड के मन में, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं अंधेरा होगा, कोई मुझे प्लग कर लेगा, कोई मुझे खराब कर लेगा, मैं मर जाऊंगी। ये सारी जो निगेटिविटी होती है मन में, ये हमें दूर रखनी चाहिए जब हमें कॉन्फिडेंट होना है। और सेकेंडली, कमिट योर सेल्फ टू द जर्नी। हमने ये भी देखा स्टार्टिंग में कि दिस इज स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर कहीं बार ऐसे होता है कि मुझे आज कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे कल भी कॉन्फिडेंट लगे। कल शायद किसी वजह से आई विल फील कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लो फील कर रही हूँ। तो ऐसे टाइम पे कमिट योर सेल्फ टू द जर्नी, खुद को बूस्ट करो। ऐसे टाइम पे खुद को बोलो कि नहीं, भले आज मुझे कम लग रहा है, आई विल फाइट विथ माई इनसिक्योरिटीज, लेकिन आई विल बी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा।
अभी ये निगेटिव थॉट्स का बारे में हमने बात किया था शुरू में भी, अभी रिसीड्स के बारे में भी मैंने बात किया। दो वुल्व्स हमेशा होते हैं हमारे दिमाग में, देयर आर टू वुल्व्स एंड दे आर ऑलवेज फाइटिंग। वो हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक बोलता है कि यू विल विन, सेकंड बोलता है कि नहीं, तुझमें तो कुछ है ही नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। जो है वो, जो पॉजिटिव है वो हमें होप देता है कि नहीं नहीं इतना बुरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। जो निगेटिव है वो हमें पीछे खींचता है, बोलता है नहीं नहीं तो आगे बढ़ ही मत, तो यहाँ है वही ठीक है। तो कौन सा वुल्फ जीतेगा दोनों में से? वही जीतेगा जिसको आप खाना दोगे, वही जीतेगा जिसको आप स्ट्रांग बनाओगे। तो ये आपके हाथ में है कि कौन से वुल्फ को हम लोग स्ट्रांग बनाएंगे, कौन से वुल्फ को हम लोग ये करेंगे, ठीक करेंगे। बिगिन योर जर्नी। अभी ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, बिल्डअप करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमने देखा हमें खुद को सेल्फ अवेयर करना पड़ेगा, हमें असर्टिवनेस लाना पड़ेगा अपने आप में, हमारी सेल्फ एफिकेसी डेवलप करनी पड़ेगी, सेल्फ एस्टीम डेवलप करना पड़ेगा। ये एक दिन की तो बात है नहीं कि आज मैंने लेक्चर ले लिया कल से आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट, ऐसे नहीं होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग में स्टार्ट ड्रेस अप शार्प। जब आप कॉन्फिडेंट हो जिस ड्रेस में, उस टाइप का ड्रेस करना स्टार्ट कर दो। पे सम अटेंशन टुवर्ड्स योरसेल्फ, खुद की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा दिखना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है हर टाइम पे आपको मेकअप लगा कर ही बैठना है, बट एटलीस्ट यू कैन स्टे फ्रेश। आप ऐसे रह सकते हो जिससे आपको खुद को फ्रेश लगे, आपको खुद को अच्छा फीलिंग हो। आपको जब आईने में देखते हो आपको लगे वाह कितना अच्छा दिख रही हूँ मैं, कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं। सो स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक दैट, उसकी तरह ड्रेस करना स्टार्ट कर दो। जब आप स्कूल के लिए भी बैठते हो, ऑनलाइन स्कूल के लिए भी अगर बैठते हो और आप अच्छे से ड्रेस करके बैठते हो तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको फ्रेश लगेगा, आप अच्छा महसूस करोगे। वॉक फास्ट, जब आप वॉकिंग करते हो, अभी ये ना सारे हमें स्कूल में भी बताते हैं टीचर कई बार कि ऐसे ऐसे झुक कर मत चला करो बच्चे, स्ट्रेट रहकर चला करो, फास्ट चला करो। कहीं से आप झूलते झूलते जा रहे हो, कहीं पे धड़क रहे हो, ऐसे करके आप ये शो करते हो कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यू स्टार्ट वॉकिंग फास्ट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप स्ट्रेट चलना स्टार्ट करो, आपको कॉन्फिडेंट अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा उसी मोमेंट से। मेंटेन गुड पोस्चर, अच्छे से बैठो, जब बैठते हो मेंटेन गुड पोस्चर। मेंटेन आई कांटेक्ट, जब बात कर रहे हो किसी से, आप स्ट्रेंजर से भी, तो मेंटेन दैट आई कांटेक्ट, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना स्टार्ट होगा। ये जानबूझकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कई लोग वो आंख चुराते हैं, वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं। तो स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट मेंटेनिंग गुड पोस्चर। एफर्मेशंस दे सकते हो हम अपने आप को, जब आईने में देखते हो स्टार्ट एफर्मिंग योरसेल्फ। आई एम गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग, आई हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटीज, आई कैन डू वेल टुडे, आई विल स्पेंड द होल डे पॉजिटिवली। इस तरह से एफर्मेशंस दे दो अपने आप को, तो आप कॉन्फिडेंट रहना स्टार्ट कर दोगे, आपको अच्छा लगना स्टार्ट होगा अंदर से। जब अंदर से अच्छा लगोगे तब अपने आप वो चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। देन स्पीक अप, बात करो, कुछ भी हो, कंट्रीब्यूट करो, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशंस। ये कई बार होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ चल रहा है स्कूल में और आप क्या कर सकते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो स्पीक अप कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कंट्रीब्यूट करो, आप पूछो। हमारा जो फोकस है हम लोग हमेशा लेने पर रखते हैं, सो इंस्टेड ऑफ लेना हमें देने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं क्या दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई गिव। अब ये बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, टीचर ने ठीक से पढ़ा या नहीं, मम्मा ने क्लास लगाया या नहीं, अभी तो सब बंद ही पड़ा है, मैं फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस कि आप क्या दे सकते हो, मैं क्या दे सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन है, व्हाट कैन आई गिव, मैं एफर्ट्स दे सकता हूँ,
राइट। अभी ये सारी चीजें हुई, कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करना है। अभी पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एक्सेप्ट योर चाइल्ड अनकंडीशनली। आपका बच्चा जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करो, जो कमियां हैं उसमें वो एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी जाकर बच्चा खुद को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है हमें भी, मतलब पेरेंट्स में भी, टीचर्स में भी। आप जब मैं बोल रही हूँ आप खुद में थोड़ा सा आप रिलेट करके देखो, रिलेट दिस टू योरसेल्फ। व्हेन आई आस्क यू टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज, you will tell me those qualities which your mother has told you, which your teacher has told you, right? So अगर हम लोग बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग बच्चों के वो क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बच्चे भी खुद के क्वालिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे भी वही क्वालिटीज के ऊपर खुद को बैलेंस बनाएंगे। लेट देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैं हर पेरेंट को बताना चाहूंगी कि एग्जाम है, लेट देम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बुक कंप्लीशन है, उनको करने दो, उनको मिस्टेक्स करने दो, उनको लेने दो, उनको वो एक्सपीरियंस, लेट देम एक्सपीरियंस कि क्या होता है, टेंशन क्या होता है। लेट देम एक्सपीरियंस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तभी वो आगे बढ़कर कॉन्फिडेंट होंगे। डोंट बी टू स्ट्रिक्ट। कई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको एक भी मिस्टेक सह नहीं पाते, मार देते हैं बच्चों को। और कई पेरेंट्स होते हैं दोज आर टू lenient, उनको कुछ भी करो चलता है। जब टू lenient होते हैं तब बच्चे गिनते ही नहीं है। दे विल बिकम एरोगेंट, दे विल बिकम, ये आगे जाके उनके कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे। एंड इफ यू बिकम टू स्ट्रिक्ट, बच्चे डरे हुए रहेंगे हमेशा, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मैं गलती ना कर दूं, इसी वजह से वो कोशिश ही नहीं करेंगे। सो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन एफर्ट्स। एफर्ट्स पे फोकस करो बच्चे के हमेशा। रिजल्ट्स कुछ भी आ जाए, बच्चे को ये बताओ कि हाँ बच्चा, आपने जो किया है बेटे, आपने कोशिश बहुत अच्छे से की है, तो वो आगे जाके कोशिश करेगा। अप्रिशिएट योर चाइल्ड। कुछ भी करता है उसको अप्रिशिएट करो। कई बार ऐसा होता है बच्चा बोलने की कोशिश करता है और बाद में मम्मी बोलती है कि अरे तुमने ठीक नहीं बोला, तुम ना वहां पे गड़बड़ा गए। सो अप्रिशिएट योर चाइल्ड, टेल हिम कि यू हैव टेकन एफर्ट्स एंड योर एफर्ट्स आर काउंटेड। आपके एफर्ट्स हमने काउंट कर लिया है। लिसन टू योर चाइल्ड। आपके बच्चे का सोचो, वो जब बात करता है उनके सुनो उसकी बात। लिसन टू हिम, कीप एवरीथिंग असाइड, कीप योर मोबाइल फोन असाइड, कीप योर टीवी ऑफ, keep every work aside and give some time to your child. Give 5 to 10 minutes every day to your child. Listen to your child. Let them explore, commit mistakes. जैसे मैंने पहले बोला कि उनको गलतियाँ करने दो, उनको गलतियाँ करने से ही वो सीखेंगे, गलतियों से ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे ही वो आगे बढ़ेंगे। So let them explore, let them commit mistakes. ये बात हमने पहले भी कही है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, कई बच्चों में ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को जानते नहीं हैं और कॉन्फिडेंट फील कर देते हैं। सो दैट इज योर ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस से कुछ ज़्यादा, तो इससे हमें दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट फील करो बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज टॉपिक। सो इज देयर एनी क्वेश्चन समवन हैज वांट टू आस्क मी? Shall I stop sharing? Shall I stop sharing, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, Vasudha ma'am. I must say, you have made our Sunday morning worth listening to you and your experiences. Ma'am, you rightly said that the belief that you can accomplish anything is self-confidence. So now we move towards the most interesting part of the webinar, that is question answer session. I hand over this session to Bhavika ma'am. Over to you, Bhavika ma'am. Thank you, Urvisha ma'am. Confidence helps us feel ready for life's experiences. When we are confident,
we are more likely to move forward with people and opportunities. Self-confidence can be learned, practiced, and mastered just like any other skills. So, to master these skills, let's begin with our question answer session. For our first question, I would request our parent, Mrs. Meena Kasat, to ask her question. Good morning, ma'am. I'm Meenal Kasat, parent of Lakshit Kasat, studying in nursery. My question to you, my child get share and talk confidently at home, but it comes to school, he became shy and nervous. In such situation, how can we confident inner strength? राइट मैम, आपका जो क्वेश्चन है, मीनल कासट मैम, आपका जो क्वेश्चन है वो कई सारे पेरेंट्स का मीनल क्वेश्चन है। कासट, Yeah. राइट, मीनल कासट मैम पूछना चाहते हैं कि छोटे बच्चे यूजुअली कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, बट कभी बाहर या स्कूल जाते हैं तब वो शाय या नर्वस फील करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर पाए? Hello, thank you ma'am for translating this for all other parents. मीनल मैम, आपका जो क्वेश्चन है, am I audible? या मीनल मैम, आपका जो क्वेश्चन है वो कई सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा घर में तो बात करता है बट बाहर बात नहीं करता, स्कूल में बात नहीं करता। तो ये होता किस लिए है, पहले ये सोचेंगे कि घर में जब बच्चा होता है तब ही इज कंफर्टेबल होता है, उसको पता है अपनी मम्मी है, अपने पापा है, ये जो है ये घर का ही माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मैं गलत भी हो गया तो चलेगा। बट जब वो बाहर बात करता है, स्कूल में बात करता है, तब शायद से उसके मन में ये डर होगा कि कहीं मैं गलत तो ना हो जाऊं, कहीं मेरा गलत हो गया तो सारे मुझ पर हंसेंगे, राइट? तो ये डर हो सकता है या फिर कोई और डर हो सकता है। तो पहले तो आप अपने बच्चे से इस बारे में बात कर लीजिए, भले वो छोटा है, आप उसके साथ में मेंटेन आई कांटेक्ट, उसकी हाइट के हो जाइए, उसको पास में बिठा कर आप पूछिए कि बेटा स्कूल में क्या होता है, आप क्यों नहीं बात करते हैं टीचर से। वो बताएगा आपको उसका रीजन कि मम्मा सब हंसते हैं, मम्मा डर लगता है, या फिर मम्मा ध्यान ही नहीं होता, राइट? तो जो भी है, आप बच्चे को उस टाइम पर कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं कि बेटा आप गलत भी हो गए ना, टीचर भी मम्मी की जैसी है, जैसे मैं गुस्सा करती हूँ फिर आपसे ठीक बोलती हूँ, उसी टाइम टीचर भी शायद गुस्सा भी करेंगे फिर भी आपसे बाद में अच्छे से ही बोलेंगे। दे ऑल्सो लव यू, सो यू कैन सपोर्ट योर चाइल्ड इन सच अ वे कि आपके टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छे से आपको समझ रहे हैं, वो समझते हैं आपको। तब आप अगर गलत भी हो जाओगे तो टीचर गुस्सा नहीं करेंगे, और गुस्सा भी करेंगे फिर भी वो थोड़ी देर के लिए होगा, दे लव यू, इसीलिए वो है। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो शायद से धीरे धीरे करके उसका इनर स्ट्रेंथ जो है, उसका डर जो है वो मन से निकल सकता है। टीचर्स भी ऐसे टाइम पे एनकरेज कर सकते हैं ऐसे बच्चों को बात करने के लिए, जो बात नहीं करते उनको बात करने के लिए। ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। Rightly said, ma'am. Encouraging a child is the best way to build his confidence right from his childhood itself. Now, for second question, I would request another parent, Mrs. Kamini Thakur, to ask her question. Ma'am, please unmute yourself. Good morning, ma'am. I am Kamini Thakur, parents of Nirvan Thakur, studying in junior KG. My question to you is, how can someone with low confidence boost his self-confidence? यदि किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभी जो पूरा ये है हमारा वेबिनार ही इस टॉपिक पर हुआ है कि हम लोग कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं।
तो ये अगर हमारी खुद की बात है कि हमें खुद का लो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना है, तो हमें खुद की तरफ ध्यान देना, ये हमारी पहली चीज़ होगी. स्टार्ट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर सेल्फ. मैं कब मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, एंड देन स्टार्ट saying this, give some affirmations to yourself. आप खुद को affirmations दे सकते हो कि मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मुझे जो मैं चीज़ करूँगी वो अच्छे से करूँगी. जो इनसिक्योरिटीज़ है खुद के अंदर वो जान लीजिए. जब आप खुद को जानेंगे तो हमें अपने आप से इनसिक्योरिटीज़ पता चल जाती है कि हमें डर किस बात से लगता है, क्यों मुझे लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और लोग कुछ बोलते हैं इसीलिए, बाकी मैं कुछ गलत हो जाऊंगी इसीलिए, मेरी गलतियां कोई पिन पॉइंट करता है इसलिए. जब ये इनसिक्योरिटीज़ है जो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कम कर रही है, तो इन इनसिक्योरिटीज़ को हम लोग वन बाय वन टैकल कर सकते हैं. आप खुद टैकल कर सकती हैं. क्यों आपको कॉन्फिडेंट क्यों नहीं लग रहा है, लो कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है, ये खुद आप टैकल कर सकते हो. बच्चों की जब बात आती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे बढ़ाना है, तो अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो. जैसे आप दूसरों को करेंगे, राइट, जैसे आप बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हो, उसी टाइप आप जब कुछ अच्छा काम करते हो आप खुद को अप्रिशिएट करो. भले ही सब्जी कैसे बनी है, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी हम लोग बना देते हैं जब मम्मियाँ होती हैं वो, और वो सब्जी कोई और नहीं खाता. जब कोई और नहीं खाता वी फील लेस कॉन्फिडेंट. तो इससे अच्छा आप खुद वो जब खाते हो आपको कैसा लग रहा है. इफ इट इज गुड, इफ यू आर फीलिंग कि नहीं मुझे लग रहा है ये सब्जी अच्छी बनी है, देन अप्रिशिएट योर सेल्फ. किसी और के अप्रिसिएशन पे मत जाओ. अप्रिशिएट योर सेल्फ कि मैंने सब्जी अच्छी बनी है और मुझे सब्जी अच्छी लगी है. स्टार्ट डूइंग दिस योर गुड क्वालिटीज. जब कुछ भी आप करते हो, अच्छे से मैनेज करते हो, आप कई सारे काम करते हो, लाइक अ वंडर वुमन, एवरीथिंग यू हैव टू डू, आप सब करते हो, देन अप्रिशिएट योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने जो किया अच्छा किया है. देन दैट विल स्टार्ट बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस. रिस्पेक्ट योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, राइट. I think I have answered your question, ma'am. Thank you for that question. It's very well said, ma'am. For adults, we really need to cope up with our insecurities. Thank you, ma'am. Now, for the third question, I would request our student, Karan Shah, to ask his question. Good afternoon, ma'am. I am Karan Shah, studying in Standard 8. Ma'am, my question to you is, how can meditation or different activities help to build my moral or create confidence in me? Very nice question, Karan. I am sure बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेडिटेशन या एक्टिविटीज करने जरूरी है. नाइस क्वेश्चन करण. आप इतना सोचते हो, इसके लिए पहले तो आपका अभिनंदन करूंगी मैं कि आपने इतना सोचा और ये क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ. तो मेडिटेशन जो है बेटा, वो आप में आपको खुद को पहचानने की अपॉर्चुनिटी देगा. जब आप मेडिटेशन करते हैं हम लोग, तब हम बाकी के सारा क्लोज करके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, खुद के सेंसेशंस को जानने की कोशिश करते हैं, खुद के थॉट्स को जानने की कोशिश करते हैं. तब जब आप मेडिटेशन करते हो उसके कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक तो होता है कि आप सुबह जब उठते हो, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग. आप खुद के ब्रीथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जिससे आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो काम डाउन होंगे. जो एंग्जाइटीज है, कई बार उठने के तुरंत बाद वो स्टार्ट हो जाता है, अभी स्कूल है, अभी ये है, अभी वो है, वो काम डाउन होगा. एंड देन यू कैन प्लान योर डे सच अ वे. ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज है आपको हेल्प कर सकता है. दूसरा जो मेडिटेशन है, दैट इज आई विल सजेस्ट यू माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट में रहना. कई बार ऐसे होता है कि हम लोग आगे आगे का सोचते जाते हैं और जो अभी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. सो अभी हमें करना क्या है, जब
ये होता है तो हमें वी हैव टू कम बैक टू प्रेजेंट कि अभी क्या चल रहा है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ. और दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन विल हेल्प यू इन कॉन्सेंट्रेटिंग. अगर आप ये भी करते हो कि क्लास चल रहा है, एक तरफ आप खाना खाते हो, तब आपका अटेंशन डिवाइड हो जाता है. तब ऐसे करने से अच्छा जब आप खाना खा रहे हो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड ओनली, तो वो फूड भी अच्छे से हजम होगा. जब आप स्टडी कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी ओनली, तब वो स्टडी आपको फोकस रहेगी. तो ये मेडिटेशन का दूसरा पार्ट है जो आपका फोकस बढ़ा सकता है. ये दोनों चीजें जब आप करते हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ध्यान होता है वहां पर. राइट, स्कूल में आपका ध्यान रहेगा, तब आपका कंसंट्रेशन अपने आप, कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या चल रहा है और मुझे क्या बोलना है. थर्ड थिंग आप कर सकते हो, यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्लास. जब कुछ सवाल टीचर्स पूछते हैं, यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. भले ही वो गलत हो, भले ही आपका आंसर गलत हो, भले ही आपकी चीजें गलत हो, स्टार्ट सेइंग दैट. टीचर्स जो है आपके लिए बैठे हुए हैं, दे आर देयर टू करेक्ट यू. आपको पढ़ाने के लिए ही वो है वहां पे. सो इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, दे विल टीच यू. So keep this in mind and start contributing in class. You can also participate in different speech competitions, debating competitions, जो performance competitions है वहाँ पे आप concentrate participate कर सकते हो. Exams में भी you start participating in different types of exams. तो your confidence level will automatically boost. Okay, have you got the answer? Thank you. Rightly said, ma'am. Meditation helps us to find our inner self and our inner world. Surely, all our students will try these meditation and these activities to boost their morale and confidence. For next question, I would request one of our ex-student, Jinay Shah, to ask his question. Good morning, ma'am. I, Jinay Shah, ex-student of Acharya Sri Vijay Vallabh School. Ma'am, my question to you is, ma'am, I have just passed out my SSC grade. Kindly suggest me some tips how I can cope up with my confidence in this competitive world of my further studies. मैम, जिन्हें जैसे कितने बच्चे यह फील करते होंगे कि 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आगे की हायर स्टडीज एंड कॉम्पिटिशन्स के लिए नर्वस फील करते हैं. ऐसे वक्त में हम उनका कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रख सकते हैं? जिनय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका कि इससे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखूंगा. जिनय, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनय और जिनय के जैसे और बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रिपेयर योर बकेट लिस्ट. आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, आप क्या बनाना चाहते हो, और ये बकेट लिस्ट जो है ये अपना खुद का होना चाहिए. डोंट से दैट माय फादर हैज अ ड्रीम दैट मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो आई विल बिकम इंजीनियर. ये आपका ड्रीम होना चाहिए. तो आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या है. सो मेक अ बकेट लिस्ट. ये बकेट लिस्ट विल हेल्प यू टू सेटल डाउन योर गोल्स कि आप क्या करना चाहते हो. ये बकेट लिस्ट जो है वो बड़ा होता है, जैसे बकेट में हम सारी चीजें डालते हैं, उसमें से हमें छोटी छोटी चीजें निकालनी है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ. राइट, मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट कि मैं क्या करना चाहता हूँ. सेट योर गोल एंड स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स दैट गोल. राइट, बकेट लिस्ट यानी आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप जो करना चाहते हो. और जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो यू डोंट अफ्रेड ऑफ दिस वर्ल्ड. ये कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आई हैव टू रन फास्ट. ज़रूरी नहीं है बेटा, आपको खुद से कंपटीशन करना ज़रूरी है. आप खुद से कंपटीशन करो. ये मेरा गोल है, ये मैंने अचीव कर लिया, मुझे अभी आगे जाना है. ये मेरा दूसरा गोल है, वो मैं अचीव करूँगा. लाइक दिस यू कैन डू. आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी बनोगे, आप अच्छे बनोगे. सो दिस इज नॉट द केस कि अगर आप ने किसी और की नज़र से बहुत अच्छा कर लिया तो आपने अच्छा कर लिया. ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ. आपका इनर सेल्फ जो है वो प्लीज करने की कोशिश करो, उससे खुश करने की कोशिश करो, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाओगे. तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह पाओगे, रुक पाओगे. राइट, सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप गोल सेटिंग करो, एक एक गोल को अचीव करने की कोशिश करो.
वो गोल आप लिख सकते हो कहीं पर, अगर आप चाहे तो। वो गोल अचीव करने के लिए कौन सी डिफिकल्टीज आपको आ रही है वो अंडरस्टैंड करो, और वो डिफिकल्टीज क्यों आ रही है वो भी अंडरस्टैंड करो। देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर्स कि वो गोल अचीव करने के लिए, या फिर यू कैन स्टडी मोर, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो आप, ज़्यादा ये कर सकते हो, तो आपको आगे बढ़ने के लिए चांस मिलेगा, आपको डर नहीं लगेगा कि आप कैसे करोगे करके। सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट। ओके, या थैंक यू जिने। Exactly right, ma'am. All of us do have a bucket list. So do these children. After listening to you, they all will boost their confidence by keeping it on the priority basis in their bucket list. Right, Janai? Yes. Okay. Last but not the least, I would request our teacher, Mrs. Itisha Shah, to ask her question. Good morning, ma'am. I'm Itisha Shah, teacher of Acharya Shri Vijay Vallabh School. I would like to ask, when our students take part in any national or international level competitions, how can we maintain their self-confidence over there, ma'am? Very nice question, Itisha ma'am. As a teacher, हम सबको यह चिंता रहती है कि जब हमारे बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, तब वहाँ बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन मैडम। पहले तो आपके स्कूल बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। परमार सर आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए अलग अलग वेबिनार्स ले रहे हो, तो नो डाउट आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक पार्ट अब हम लोग कर सकते हैं कि डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जब बच्चे जाते हैं तब होता यह है कि उनको एक्सपोजर मिलता है, जो आप दे रहे हो, आप ज़्यादा एक्सपोजर किसी को मिलेगा उतना एक्सपीरियंस उनका बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आगे जाकर हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज करना आसान हो जाता है। इससे अपने आप ही एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है बच्चों की, जिससे वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को फ्लरिश होने के लिए मदद कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कहीं पर्टिकुलर बच्चे ही होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कोई और बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम लोग वो बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आप अगर देते हो, इनकरेज करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हो तो हमें उन्हें इनकरेज करना ज़रूरी है। दूसरी बात वी कैन डू एज कि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कहीं पे एंड वी थिंक कि इससे हमारा स्कूल का नाम खराब होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन दैट चाइल्ड्स एफर्ट्स कि बच्चा भले ही वहाँ पे जाकर गलती कर रहा है बट वो कुछ कोशिश कर रहा है, तो मे बी एक बार वो गलत हो गया तो दूसरी बार शायद वो गलत नहीं होगा। इससे और एक चीज़ होगी कि बच्चों के मन में भी ये चीज़ें होगी कि हाँ इट इज़ ओके कि मेरी टीचर जो है एक बार गलती होने से मुझे रिजेक्ट नहीं करने वाले हैं, मेरे टीचर हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और शायद एक बार गलती हो गई तो शायद मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ, उनके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे उस चीज़ की। तो इस तरह से अगर जब जो चीज़ें स्कूल करती है आपकी, कई सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन्स है, कई सारी एक्टिविटीज स्कूल में की जाती हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे बच्चे ज़रूर कॉन्फिडेंट बनेंगे। आपका स्कूल जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छे तरह से कोशिश कर रहा है। सो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो बच्चों को, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी मैं आई विश कि और ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसे आपके स्कूल में हो जिससे सारे बच्चों को, स्कूल के और डिफरेंट बच्चों को भी चांस मिले आगे आने का, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की। सो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। सो एंड आई थिंक जैसिंटा मैम एंड परमार सर बोथ आर डूइंग रियली नाइस जॉब in this school. So thank you, ma'am. Yeah, I think I have answered the query, right? Yes, very well explained, ma'am. As a teacher, we should encourage our students for all the efforts they have put in
rather than worrying about the results. Focusing on their efforts and appreciating them will surely boost their confidence. Self-confidence is all about the state of mind where we push our boundaries and encourage ourselves to lead towards success. If we believe in ourselves, we can accomplish any task and overcome all the obstacles that come in front of us. As rightly said by ma'am, we should have control on our inner fear and keep moving forward. Thank you, ma'am, for your valuable views, guiding us and giving us your tips to boost our confidence. With this, now let us watch a short video which shows how to overcome our obstacles. Try till you succeed is a perfect phrase over here. We should keep trying and keep practicing till we uplift our confidence. With this, we have come to the end of our webinar. I request Urvisha ma'am to propose the vote of thanks. Thank you, Bhavika ma'am. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School to all those who have contributed in making this webinar a great success. I extend a profound appreciation to our eminent speaker, Mrs. Vasudha Deshpande, who spared time from her busiest schedule to enlighten our minds and encourage us for being more confident. My gratitude to you, ma'am, for gracing this webinar and sharing your thoughts and opinion on our today's topic. I am immensely thankful to our chairman, Sri Subhash Parmar sir, all the members of Education Committee, principals, teachers for their support, efforts, and cooperation to make this webinar a memorable one. My special thanks to a very proactive and dedicated technical team who constantly work hard to make this webinar a successful one. Last but not the least, I would like to thank our viewers, parents, and students for sparing your valuable time and showing a great interest. Stay tuned with us for yet another Sunday hour. Thank you.